और जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है। ओके, नाउ वी सी डिप्लॉयमेंट डायग्राम. Deployment diagram is a structure diagram which shows architecture of system as deployment, distribution of software artifacts to deployment targets. Some common type of deployment diagrams are implementation, manifestation of components by artifacts, specification level deployment diagram, instance level deployment diagram, and network architecture of the system. All these type of depictions can be done through deployment diagram. Okay, first of all, see first example, that is manifestation. That is manifestation means implementation of components by artifacts. अब हो सकता है कि हमने किसी कंपोनेंट डायग्राम में ये लॉजिकल कंपोनेंट्स बनाए हों. These are logical components. और ये हमने किसी कंपोनेंट डायग्राम में बनाए हों. वन कंपोनेंट नेम इज शॉपिंग कार्ट एंड अदर वन इज ऑर्डर. तो अब हम क्या डिप्लॉयमेंट डायग्राम में क्या शो कर रहे हैं? वी आर शोइंग दैट दिस शॉपिंग कार्ट कंपोनेंट इज बीइंग by or being implemented by in this jar file. jar file का नाम है shp cart और it is implemented as a library. The concept of this is concept of artifact. Artifact means something that is deliverable. तो कोई ऐसा फिजिकल डिलीवरेबल हो उसको आर्टिफैक्ट कहा जाता है. तो ये जार फाइल आर्टिफैक्ट है, हम डिलीवर कर सकते हैं. एंड दिस कंपोनेंट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एज ऑर्डर्स डॉट जार फाइल एंड देयर इज अनदर जार फाइल web tools lib dot jar. Again, these all are artifacts and these artifacts are kept in a folder and name of folder is lib. Then on top of it there is another folder web and inf, and this folder has also web.xml, and all these artifacts are further enclosed in war file, that is book क्लब ऐप वार फाइल. तो वार फाइल में बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, उसका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है, काफ़ी सारा मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं. ऑर्गेनाइज एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो कि एक वार फाइल का होता है जावा जावा डबल ई में J2EE में. So it is used to show manifestation of component by artifacts and internal structure of the artifacts. So पूरा internal structure हमें नज़र आ रहा है किस तरीके से artifacts हम organize करेंगे और logical components के साथ किस तरह linked है ये. So this is one example of deployment diagram. Another example is that is specification or type level deployment diagram. It shows some overview of deployment artifacts to deployment targets without referencing specific instances of artifacts or nodes. यहाँ पे हम कहते हैं जी ये एक पूरी एप्लीकेशन है which is depicted in a folder. पैकेज के अंदर हमने शो कर रहे हैं कि एक एप्लीकेशन है बुक क्लब डॉट वेब. फिर हम कहते हैं जी देयर आर वेरियस डिवाइसेस. ये डिवाइस का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है आपको. अगेन ये UML का कॉन्सेप्ट है डिवाइस का. देयर इज अ डिवाइस Sunfire server. Within a server there is an execution environment Tomcat, and within a Tomcat there is another execution environment that is Catalina servlet container, and within that container there are various artifacts, and there is a deployment specification as well. डिप्लॉयमेंट स्पेसिफिकेशन वेब. तो ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं डिप्लॉयमेंट स्पेसिफिकेशन आर्टिफैक्ट एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिप्लॉयमेंट डायग्राम में होते हैं.
Again, there is another device and it has its own internal structure. And then there is the communication path. और कम्युनिकेशन पाथ में हम कह रहे हैं कि जी दोनों जो डिवाइसेज हैं दी विल कम्युनिकेट ओवर TCP/IP protocols. Let's see, another example of deployment diagram is instance level deployment diagram. Instance level deployment diagram. It shows deployment of instances of artifacts to specific instances of deployment targets. Web application is deployed to the application server. यहाँ पे देखें कि ये डिवाइस है और इसका साथ इंस्टेंस शो कर रहे हैं हम कि ये वेब सर्वर 1 सन का एक इंस्टेंस है, वेब सर्वर 1. फिर ये टॉम का एनोनिमस इंस्टेंस है, कैटलीना सबलेट का एनोनिमस इंस्टेंस है. तो वी कैन शो द इंस्टेंसेस. दिस इज इंस्टेंस लेवल डिप्लॉयमेंट डायग्राम. सिमिलरली हम कह रहे हैं कि जी सन स्पार्क सर्वर का ये एक इंस्टेंस है DB सर्वर 14. इसी तरह ओरेकल 10G का इंस्टेंस शो कर रहे हैं हम. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर. तो वी कैन ऑल्सो डिपिक्ट इंस्टेंस लेवल artifacts as well. Then last is how we can also use the deployment diagram to depict or any network architecture diagram. इसमें हमको डिफरेंट किस्म के आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं. तो आइकॉन्स लगाने के लिए हमें प्रोफाइल्स बनानी पड़ती हैं. UML प्रोफाइल. UML प्रोफाइल में हम आइकॉन अटैच कर सकते हैं एंड देन once we apply those profiles on any model, then we can use alternate icons for any concept. For example, ये node का concept हो सकता है. node के concept को further specialize कर लें profiles के अंदर तो हम different notations use कर सकते हैं. UML standard has no separate kind of diagrams to describe a network architecture and provides no specific elements related to द नेटवर्किंग. तो नेटवर्किंग स्पेसिफिक कोई नोटेशंस नहीं है UML के अंदर. डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स कुड बी यूज फॉर दिस पर्पस यूजुअली विद सम एक्स्ट्रा नेटवर्किंग स्टीरियोटाइप्स. अब जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये प्रोफाइल्स के अंदर बनाए जाते हैं. नेटवर्क आर्किटेक्चर डायग्राम विल यूजुअली शो नेटवर्किंग नोड्स एंड कम्युनिकेशन पाथ्स बिटवीन देम. तो ये कम्युनिकेशन पाथ हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं सारे. तो ये 4 डायग्राम मैंने आपको दिखाई हैं. तो let's see on Papyrus. You can see concepts कौन कौन से नज़र आ रहे हैं आपको. आर्टिफैक्ट, डिवाइस, डिप्लॉयमेंट स्पेसिफिकेशन, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, मॉडल, नोड, पैकेज. तो ये जो नज़र आ रहा है आपको ये नोड का सिंबल है. नोड का सिंटैक्स नज़र आ रहा है आपको लाइक अ बॉक्स. नोड के अंदर ही मैंने एक और नोड डाला हुआ है. ये भी समझेंगे डिवाइस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ नोड. फिर ये आर्टिफैक्ट, ये एक आर्टिफैक्ट डाला हुआ है मैंने. ठीक है, आर्टिफैक्ट के अंदर आर्टिफैक्ट भी डाल सकते हैं आप टू क्रिएट हायरार्की. ये डिप्लॉयमेंट स्पेसिफिकेशन नज़र आ रही है आपको. ये कॉन्सेप्ट डाला हुआ है यहाँ पे. सो दिस हाउ वी कैन क्रिएट organize our component diagram. And this is another example. इसके अंदर आपको देखेंगे आपको ये कम्युनिकेशन पाथ भी नज़र आ रहा है TCP/IP. ये आपको कम्युनिकेशन पाथ नज़र आ रहा है यहाँ पे. कॉन्सेप्ट एक डिप्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है. तो मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है. सो दीज आर कॉन्सेप्ट्स जो हमने पीछे देखे भी हैं. सो दिस इज all as far as the structure diagrams of UML are concerned. तो मैंने just very briefly
आपको डिफरेंट जो स्ट्रक्चर डायग्राम अवेलेबल है वो मैंने आपसे कुछ 50% लेक्चर पिछला था और 50% लेक्चर ये इसमें हमने कवर किए हैं structure diagrams. Now we are going to cover few behavior diagrams. One is use case diagram and other one is information flow diagram and third one is activity diagram. तो तीन diagram हम और देखेंगे. use case सबसे पसंदीदा diagram है students की. We'll start from that. Behavior diagram shows, but what first of all, by what we mean by behavior diagram. Behavior diagram shows the dynamic behavior of objects in a system. Behavior diagram shows dynamic behavior of the objects in a system which can be described in as series of changes of the system over time. तो टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स अगर आ जाएं या सीक्वेंस रिलेटेड कोई चीज़ें बतानी है जी, पहले ये हुआ बाद में ये हुआ, तो देन वी go for behavior diagrams. The first one is use case diagram. It is not it has behavior as well as structured concepts. So use case diagrams are in fact twofold. They are both behavior diagram because they describe behavior of a system, describing set of actions. क्योंकि set of action आ जाएंगे जी, पहले ये action 1, action 2, action 3, तो क्योंकि इसमें actions आ रहे होते हैं तो ये behavior है. That set of actions use cases that some systems should or can perform in collaboration with one or more external users of the system called actors. But it is also a structure diagram. They are also structure diagram as a special case of class diagram, where classifier, अब use case भी एक तरह का classifier होता है और actor भी एक तरह का classifier होता है. That's why classifiers are restricted to be either actor or use cases related to each other with association. तो इसमें association भी होती है और classifier भी होते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं जी ये इसमें dual nature है इसकी. So UML 2.5 specification moved use cases out of behavior modeling to UML supplementary concepts. Two kinds of diagrams can be made. One is business use case diagram, another one system use case diagram. तो पहले देखते हैं बिजनेस यूज केस डायग्राम में क्या हो सकता है. बिजनेस यूज केसेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस to represent business function, process or activity performed in the modeled business. A business sector represents a role played by some person or system external to the modeled business and interacting with the business. Business use case should produce a result of observable value to the business actor. तो ये समझ लें कि एक तरह की डेफिनेशन है बिजनेस सेक्टर की. बिजनेस represents a role played by some person or system external to the model business. And business use case की क्या डेफिनेशन है? It should produce result of observable value to the business actor. ये देखिए थोड़ा सा ये जो टिपिकल यूज केस डायग्राम होती है उससे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको इसमें और नॉर्मल यूज केस डायग्राम? साइड पे सर स्लैश हुआ है. सिस्टम यूज केस डायग्राम साइड पे सर स्लैश हुआ है. साइड पे स्लैश हुआ है, बिल्कुल ठीक है.
तो ये स्लैश इज नोटेशनल डिफरेंस है. This is not a system use case, rather it is a business use case. So there is a slash, and similarly, it is not an actor, system actor, rather it is a business actor. There is a slash. ठीक है जी. देन ये जो बाउंड्री होती है रेक्टेंगल, इट रिप्रेजेंट्स बिजनेस बाउंड्री. कि जी जो कुछ भी हम इसके अंदर शो कर रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस. और जो इससे बाहर है, अगर यानी एक तरह का बिजनेस का स्कोप सेट कर रहे होते हैं हम कि जी इस बिजनेस में हम ये चीज़ें हो रही हैं. तो दैट्स व्हाई वी से दैट यूज केस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट डायग्राम, यूज केस डायग्राम का फ़ायदा ये होता है कि सिंपल होती है. आप अपने यूज़र के साथ, क्लाइंट के साथ आसानी से कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं और नेगोशिएट कर सकते हैं. जो टिपिकल कॉन्सेप्ट हैं वो आपको नज़र आ रहा है. इंक्लूड का कॉन्सेप्ट है, इंक्लूड रिलेशनशिप है, देन देयर इज एक्सटेंड रिलेशनशिप, एंड देयर इज अ जनरलाइजेशन रिलेशनशिप एज वेल, जो कि हो सकता है यूज केसेस में भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है. तो सेकंड example is of system use case. It is just like a normal use case diagram जो कि आप typically देखते हैं, बैचलर लेवल पे भी देखी होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी शायद किसी लेक्चर में आ गई हो. So the boundary is depicting a system or a subsystem. The name of subsystem is checkout and it has, और subsystem में ये सारे फंक्शनैलिटी हमने इम्प्लीमेंट करनी है. This is what this use case diagram is depicting. Then there is an actor. Actor can be human, or a actor can be some system as well. और include extend relationships हो सकते हैं. And sometimes this boundary is called subject. Subject इसको कहते हैं हम बाउंड्री को. तो थोड़ा सा हम इंक्लूड और एक्सटेंड का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. इंक्लूड रिलेशनशिप क्या चीज़ होती है? यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक यूज केस डायग्राम है. इसके अंदर हमने एक फंक्शनैलिटी, इट इज डिपिक्टिंग सम फंक्शनैलिटी. इसके अंदर कुछ थोड़ी सी फंक्शनैलिटी है और इस तरह यूज केस बी है, उसके अंदर भी वही फंक्शनैलिटी है. तो बोथ यूज केसेस आर यूजिंग द सेम फंक्शनैलिटी. सो द वाइज वे इज टू पुल आउट दिस फंक्शनैलिटी एज अ सेपरेट यूज केस and use include relationship so that this functionality will be required to be implemented just once. अगर इस सिचुएशन में हम रहते हैं तो हमें दोनों यूज केसेस में कॉमन फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी. तो इसलिए कॉमन फंक्शनैलिटी को जैसे हम फंक्शंस वगैरह सी में, सब रूटीन्स वीबी में सेपरेट बना लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीयूज. We can create some use cases for the purpose of reuse, and we can add that functionality in any use case. तो अब ये है कि हमें वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी यूज केस सी की. एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? No, sir. No, sir. No, sir. Similarly, there is a concept of extend. Extend में एक होता है extended use case and there one is extending use case. ये extend relationship नजर आ रहा है. इसका मतलब है this use case is extended, जिसको extend किया गया है, और this is the functionality that is being extended to the registration. मतलब क्या है इसका? Extending use case can be optionally inserted. ये use case optionally insert किया जा सकता है into behavior defined in extended use case. Extended use case is meaningful
ऑन इट्स ओन, यानी कि ये अगर ये एक्सटेंड ना भी करे यूज केस को, फिर भी ये कंप्लीट यूज केस है. So it is meaningful on its own. It is independent of extending use case. तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये जो यूज केस है ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा. लेकिन अब लिखा हुआ क्या रजिस्ट्रेशन है, गेट हेल्प ऑन रजिस्ट्रेशन. तो फॉर एग्जांपल आपने रजिस्ट्रेशन का पेज खोला है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और आपको सारा जो भी कुछ भी उसमें लिखा हुआ है सब समझ आ गई है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, वो रजिस्ट्रेशन हो गई है. एक और खोलता है बंदा, वो रजिस्ट्रेशन करते हुए कहीं कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं आती इसका क्या करूं, तो वो क्या करेगा, ऑप्शनली गेट हेल्प का बटन दबा देगा, तो उससे एक चीज़ खुल जाएगी. तो वो एक एडिशनल फंक्शनैलिटी है जो ऑप्शनल है, लेकिन बताते खुद रजिस्ट्रेशन यूज केस इज कंप्लीट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन. Registration use case is complete and meaningful on its own. It could be extended with optional get help on registration use case. Any question on this slide? सर जी सर मेरा ये है कि ये जो बिजनेस यूज केस है और जो सिस्टम यूज केस है, इनके कॉन्सेप्ट्स तो जी. सेम है. हाँ हम इन्हें डिफरेंशिएट इसी बेस पे कर रहे हैं कि ये वो बिजनेस के लिए और वो सिस्टम के लिए, या कोई और भी चीज है? एक तो नोटेशनल डिफरेंस है, पहली बात है, और दूसरा नोटेशनल डिफरेंस क्यों है कि कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है. कई मतलब हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं यूएमएल को. जनरली तो यूएमएल बनाई गई है सिस्टम मॉडलिंग के लिए ना, तो उसमें वो एडिशनल उन्होंने नोटेशंस आरयूपी बेस्ड नोटेशन इंट्रोड्यूस किए हैं. आरयूपी में ये नोटेशन है, प्योर यूएमएल में नोटेशन नहीं है ये वाली, ये आरयूपी बेस्ड नोटेशन है जिसमें थोड़ा सिंबल का डिफरेंस है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली डिफरेंस है. क्योंकि बिजनेस आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बात करते हैं, जैसे आप कहते हैं जी मैं पीआईएम बना रहा हूँ या मैं डोमेन के कॉन्सेप्ट्स बना रहा हूँ, तो आप ज़रा जब बिजनेस लेवल पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो आप बिजनेस डायग्राम बनाएंगे. जब आप इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जाएंगे, सिस्टम लेवल पे जाएंगे, तो फिर आप हो सकता है बहुत सारी सिस्टम डायग्राम बनानी पड़े, हर मॉड्यूल के लिए सेपरेट बनानी पड़े आपको. तो स्कोप का डिफरेंस है बेसिकली, वो एब्स्ट्रैक्ट स्कोप है बिजनेस यूज केस का, और सिस्टम यूज केस का स्कोप जो है वो स्पेशलाइज है ज़रा ज़्यादा, और वो हो सकता है कि बहुत सारी बने, और वो ऑब्वियसली इस वजह से फिर बिजनेस यूज केस की डायग्राम्स कम होंगी या एक होगी, और सिस्टम यूज केस की बहुत सी डायग्राम हो सकती हैं. तो स्कोप का डिफरेंस है बेसिकली. जी, एनी, आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन. यस सर, ठीक. अच्छा जी, अगली स्लाइड देखें. देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन पॉइंट. जो एक्सटेंडेड यूज केस होता है ना, एक्सटेंडेड यूज केस में एक्सटेंशन पॉइंट्स भी होते हैं. एक्सटेंशन पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक्सटेंशन पॉइंट में बताते हैं कि किस मौके पे, फॉर एग्जांपल ये गेट हेल्प रजिस्ट्रेशन को किस मौके पे आपने यूटिलाइज करना है या एक्सटेंड करना है. तो वो जो मौका है, वो जो सिचुएशन है, उसको हम एक्सटेंशन पॉइंट से डिपिक्ट करते हैं. तो द एक्सटेंशन पॉइंट हियर इज रजिस्ट्रेशन हेल्प. तो इट माइट बी सम बटन, माइट बी सम हाइपरलिंक, कुछ भी हो सकता है. हम कहते हैं जी जब ये एक्सटेंशन पॉइंट है रजिस्ट्रेशन हेल्प, यानी कि जब इसको क्लिक करेंगे फॉर एग्जांपल फंक्शनैलिटी में, तो ये इन्वोक हो जाएगा गेट रजिस्ट्रेशन हेल्प. तो इसलिए एक्सटेंशन पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी है इसके अंदर, उस यूज़ केस में जो कि एक्सटेंड होता है. एक्सटेंडेड यूज़ केस में एक्सटेंशन पॉइंट भी डाले जाते हैं, या वो ऑटोमेटिकली आ जाता है जैसे ही आप एक्सटेंड रिलेशनशिप लगाते हैं. तो ठीक है, एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? फिर आप कंडीशन भी लगा सकते हैं एक्सटेंड रिलेशनशिप पे. कंडीशन क्या है, यूजर क्लिक हेल्प लिंक. तो एक्सटेंशन पॉइंट हो गया रजिस्ट्रेशन हेल्प. ये हमने एक तरह की कंडीशन डिपिक्ट किया है यहाँ पे. रजिस्ट्रेशन यूज केस इज कंडीशनली एक्सटेंडेड बाय गेट हेल्प ऑन रजिस्ट्रेशन यूज केस इन
एक्सटेंशन पॉइंट रजिस्ट्रेशन हेल्प, दिस इज हाउ वी रीड इट, कि इस पॉइंट में एक्सटेंड होगा। अच्छा जी, तो लेट्स सी पपायरस। बिहेवियर डायग्राम, यूज केस डायग्राम, ये देखें, ये यूज केस डायग्राम है गेट हेल्प ऑन रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन का यूज केस है और यहाँ पे इसको आपको एक्सटेंशन पॉइंट भी नजर आ रहा है। ये एक्सटेंशन पॉइंट है और ये एक्सटेंड रिलेशनशिप है। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं अपने व्यू के अंदर। ये रजिस्ट्रेशन यूज केस है, ये वाला, ये रजिस्ट्रेशन यूज केस, इसको आपको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको ये इसका अंदर एक्सटेंशन पॉइंट नज़र आ रहा है, एक्सटेंशन पॉइंट रजिस्ट्रेशन हेल्प, जो कि ये वाला है। ठीक हो गया। लेट मी ऐड अनदर यूज केस। ये यूज केस मैं डाल रहा हूँ, यहाँ से मैं एक्सटेंड रिलेशनशिप लगाता हूँ, तो ये देखें एक और एक्सटेंशन पॉइंट आ गया इसके अंदर। तो हर एक्सटेंड रिलेशनशिप के साथ एक एक्सटेंशन पॉइंट ऐड हो जाता है। आई कैन रीनेम इट, मैं कहता हूँ टेस्ट मी नाउ, ये एक्सटेंशन पॉइंट का नाम है एंड इट इज रिलेटेड टू दिस एक्सटेंड सिंबल। और एक्सटेंड रिलेशनशिप भी अलग से बन रहा होता है। एक्सटेंड किधर गया, गेट, ये एक्सटेंशन रिलेशनशिप है, ये जो नज़र आ रहा है आपको एक्सटेंड रिलेशनशिप है। इसी तरह जो एक और यूज केस बनाया, कहाँ गया है वो, इट शुड बी हेयर समवेयर, टेस्ट मी नाउ, ये तो हो गया। एक और यूज केस कहाँ गया भैया, नज़र आ रहा है आपको, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तीसरा यूज केस कहाँ है। सेव, ठीक है जी, अभी नज़र नहीं आ रहा मुझे, बहरहाल जहाँ कहीं होगा। अच्छा जी, तो दिस इज टिपिकल इन्वायरमेंट ऑफ यूज केस डायग्राम इन यूज केस। ये आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट है ये, या पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट आप किस चीज़ से बनाना चाह रहे हैं, क्लास से बनाना चाह रहे हैं, किसी कंपोनेंट्स से बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी ये जो दो यूज़ केसेस हैं ये एक कंपोनेंट में इम्प्लीमेंट करने हैं, एक क्लास में इम्प्लीमेंट करने हैं, तो आई कैन प्लेस अ सब्जेक्ट हेयर और उसके अंदर मैं यूज़ केस रख सकता हूँ। तो ये इसका पर्पज़ है। फॉर एग्जांपल आई से कंपोनेंट, ये बन गया कंपोनेंट। अब मैं देखते हैं इसके अंदर आ जाए। ये इस तरह इसमें नहीं जा रहा, बहरहाल मैं सेपरेटली इसमें ला सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आई कैन ऐड अ यूज केस, ठीक है जी, ये काम को कर सकता हूँ मैं। आई कैन यू ऐड पूरा कंपोनेंट के अंदर एज अ सब्जेक्ट में मल्टीपल यूज केसेस पूरी डायग्राम बना सकता हूँ। एक्टर इज आल्सो देयर, एक्टर्स आ गए हैं। फिर एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है,
you can add association between actor and a use case. Okay, so we move forward. Information flow diagram. Again, it is an important diagram to depict to be used at architectural level, क्योंकि आपको एक्चुअली डेटा फ्लो डायग्राम नहीं होती यूएमएल के अंदर, ठीक है, ये आपको भी पता होगा. डेटा फ्लो डायग्राम जनरली डेटाबेसिस का सब्जेक्ट में जनरली पढ़ाते हैं टीचर्स, लेकिन यूएमएल में नहीं है डेटा फ्लो डायग्राम. तो ये एक अल्टरनेटिव है एक तरह का इंफॉर्मेशन फ्लो डायग्राम. इट इज़ नॉट ट्रू अल्टरनेटिव बट इट प्रोवाइड सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, लेकिन है कि ये समझें कि उससे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बनाई जाती है. जब आप ओवरऑल किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी प्रोसेस को स्टडी कर रहे होते हैं कि ये कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ जाती है, तो उस लेवल उस वक्त ये यूज़ होती है. तो जनरली आप इनिशियल डिज़ाइन फेजेस में जब रिक्वायरमेंट्स वगैरह ले रहे होते हैं उस वक्त ये वाली डायग्राम्स यूज़फुल होती है ज़्यादा. Information flow diagram is a UML behavior diagram which shows exchange of information between system entities at some higher level of abstraction. Information flow may be useful to describe circulation of information through a system by representing aspect of model not yet fully specified with less details. तो आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे इंफॉर्मेशन फ्लो बताते हैं, फर्दर उसका क्या स्ट्रक्चर होगा ये चीज़ नहीं बताते, क्या डेटा टाइप होगी इंफॉर्मेशन की वो नहीं, ये चीज़ें नहीं बताते, बस हम एब्स्ट्रैक्टली एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन शो करते हैं. इट इज़ यूजफुल फॉर आर्किटेक्चर मॉडलिंग. Information flow does not specify the nature of information, mechanism by which it is conveyed, sequences of exchange or any control conditions. तो इसमें कोई control condition नहीं है, information की nature कैसी होती है, mechanism क्या होगा, sequence क्या होगा, sequence भी नहीं होता इसमें. So let's see, it's just a simple concept but very effective concept at once you are studying any organization's data flows. तो जनरली हम ये कह रहे हैं जी एक कस्टमर है, it sends an information of sales order to billing departments, billing department sends sales order to inventory department and inventory department sends information of field order to accounting department, and from billing department open order information comes to the accounting department. तो फुलफिल्ड ऑर्डर और ओपन ऑर्डर दोनों इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में आती हैं, एंड देन इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अकाउंट डिपार्टमेंट सेंड्स इनवॉइस टू द कस्टमर. सो वेरी simple way of depicting the information flow. Let's see a bit more complex example of radiology exam. Show information flow associated with radiology exams and including patient registration, ordering radiology exam, exam scheduling, acquisition of images, image storage and viewing activity. So let's start from the patient. Patient sends information to HIS. Firstly, it goes to patient registration. Then patient registration is sent to order entry place, and from there order is sent to order scheduling, and then the information goes to image acquisition. Here image is required for the user, and then image flows to the image management console, and then from there to image archiving. Then it goes to image review by the doctor. Radiologist reviews the image, then sends back to the repository, and then it goes to the referring physician, and then it's
डिस्कसेस दिस इंफॉर्मेशन विद द पेशेंट। तो आपको पूरा एक डिपार्टमेंट का एक आपको पूरा फ्लो नज़र आ रहा है। तो ये आपको इनिशियल लेवल पे ये सारी जब एनालिसिस करनी होती है तो उस वक्त ये डायग्राम बहुत यूज़फुल होती हैं। ओके, सो व्हाट इज अवेलेबल विद टू अस इन Papyrus? Papyrus में इंफॉर्मेशन फ्लो डायग्राम सेपरेटली नहीं दी गई, रादर इट इज़ मेड इन क्लास डायग्राम। तो ये क्लास डायग्राम है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स जो नज़र आएंगे इंफॉर्मेशन रिलेटेड वो मैं आपको दिखाता हूँ। वन इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आइटम। तो ये जो मैंने क्रिएट की हुई हैं सारी, ये इंफॉर्मेशन आइटम क्रिएट की हुई हैं। आई एम क्रिएटिंग वन मोर, आई से मीट इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, सो इंफॉर्मेशन आइटम्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो है इंफॉर्मेशन फ्लो का। ये इंफॉर्मेशन फ्लो नज़र आ रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन फ्लो लगी हुई है। अब मैं किसी इंफॉर्मेशन फ्लो को जब मैं खोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, तो आई कैन ऐड कन्वेड। Conveyed specifies the information item that may be circulated on this information flow. तो ये यहाँ से मैंने सेल्स ऑर्डर इंफॉर्मेशन आइटम फ्लो करवा रहा हूँ मैं इस फ्लोज के जरिए। तो ये इस तरीके से इंफॉर्मेशन आइटम और इंफॉर्मेशन फ्लो आपस में लिंक हो जाते हैं। तो सिंपल डायग्राम विद सिंपल कॉन्सेप्ट्स। Okay, so we are reaching to the last diagram, that is activity diagram. Activity diagram is UML behavior diagram which shows flow of control or object flow with emphasis on sequence and conditions of the flow. इसमें conditions डाल सकते हैं हम, concurrency show की जा सकती है। The action coordinated by activity models can be initiated because other actions finishing executing because objects or data becomes available or because some events external to the flow occur. ये मैं आगे जाके डायग्राम पे एक्सप्लेन करता हूँ इस पैराग्राफ का क्या मतलब है, इस पॉइंट का। The following nodes and edges are typically drawn on UML activity diagram. तो इसमें जो नजर आएंगे कॉन्सेप्ट आपको वो एक्टिविटी, पार्टीशन, एक्शन, ऑब्जेक्ट, कंट्रोल, एक्टिविटी एज, इस तरह के कॉन्सेप्ट नजर आएंगे। दिस इज टिपिकल एक्टिविटी डायग्राम। ये इनिशियल नोड है और ये आखिर में एंड नोड है, दोनों का नोटेशन में डिफरेंस है। देन दीज आर वेरियस एक्शंस, ये आपको एक्शन नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे एक्शंस हैं और एक्शंस को दरमियान में कंट्रोल फ्लो नज़र आ रहे हैं आपको, डिफरेंट कंट्रोल फ्लो हैं जिसकी वजह से एक्शन पूरा सीक्वेंस बन गया है। अब देखते साथ हम कह सकते हैं जी पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इस तरह। Similarly, we can use some decision block। हम alternate flow चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिसीजन। आप कहते हैं लेफ्ट नहीं राइट जाओ, ये डिसीजन नोड्स हैं। फिर ये कंकरेंट फॉक हैं, कंकरेंसी को डिपिक्ट करने के लिए जॉइन है। सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जेक्ट फ्लो का कॉन्सेप्ट भी है। ये फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेंसी इज एन ऑब्जेक्ट। सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेंसी, इसकी रेक्टेंगल भी देखें प्योर रेक्टेंगल है, बाकी सारे एक्शंस जो हैं दीज आर राउंडेड रेक्टेंगल्स, ये प्योर रेक्टेंगल है। तो ये हम कह रहे हैं जी जब फिनिश होगी कंस्ट्रक्शन देन देयर विल बी एन ऑब्जेक्ट फ्लो, और ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेंसी बनेगी। कब बनेगी, आफ्टर फिनिश कंस्ट्रक्शन। तो ऑब्जेक्ट फ्लो का कॉन्सेप्ट भी है और कंट्रोल फ्लो का भी कॉन्सेप्ट है। कंट्रोल फ्लो इज यूज्ड फॉर डिपिक्टिंग द सीक्वेंसेस, ऑब्जेक्ट फ्लो इज डिपिक्टेड फॉर डिपिक्टिंग फ्लो ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
तो ये नीचे लिखा हुआ है कंकरेंट फ्लो, इसका मतलब है कि जैसे ही ये एक्शन कंप्लीट होगा तो कंट्रोल फ्लो का टोकन इधर आएगा और ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, ये दोनों काम कंकरेंटली होंगे। There is another example of generally activity diagram remained very popular diagram for depicting the business process flow. बिजनेस प्रोसेस फ्लो को भी डिपिक्ट करने के लिए बहुत पॉपुलर रही है एक ज़माने में एक्टिविटी डायग्राम, तो इसको यूज़ किया जा सकता है। आजकल नोटेशंस ज़्यादा इन हो गई हैं, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग नोटेशंस BPMN, बहरहाल एक्टिविटी डायग्राम कैन बी यूज्ड। तो इसमें पैरामीटर का कॉन्सेप्ट भी आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैरामीटर नोड है, पैरामीटर है रिक्वेस्टेड ऑर्डर, तो हम ये कह रहे हैं कि जी ये एक्टिविटी है, इसका नाम है प्रोसेस ऑर्डर, यहाँ से शुरू होती है और फिर यहाँ ख़त्म होती है, फोर्क हैं, ज्वाइन है, डिसीजंस हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे वंस जब टोकन यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आके रुक जाएगा टोकन रिसीव ऑर्डर पे, एंड इट विल वेट फॉर सम ऑब्जेक्ट which will be received from outside of the activity diagram। तो एक तरह का ये इसका पैरामीटर है एक्टिविटी का कि इसको कुछ बाहर से रिसीव होगा कोई ऑब्जेक्ट, जब वो ऑब्जेक्ट इसको रिक्वेस्टेड ऑर्डर रिसीव होगा तो देन इट विल मूव फॉरवर्ड, टोकन आगे जाएगा, यहाँ पे डिसीजन होगा, आगे टोकन मूव करेगा और एंड हेयर एक्टिविटी विल एंड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लो को हम आउटसाइड शो करना हो तो हम पैरामीटर नोड यूज कर सकते हैं। सिमिलरली दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन एक्टिविटी डायग्राम, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्विम लेन। स्विम लेन्स को यूज करके हम बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बिजनेस प्रोसेस को डिपिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 स्विम लेन नजर आ रही हैं आपको। एक कस्टमर स्विम लेन है, जो काम कस्टमर ने करने हैं वो सारे इस स्विम लेन में आ रहे हैं, जो काम सेल्स ने करने हैं, सेल्स डिपार्टमेंट ने करने हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो वेयर हाउस डिपार्टमेंट ने करने हैं वो सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिपिक्ट कर सकते हैं और सीक्वेंसेस वगैरह भी डिपिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी डायग्राम। सो दिस अगेन वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। Then there is also concept of expansion regions। एक्सपेंशन रीजन में क्या होता है, ये आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है यहाँ पे, डॉटेड लाइन जो नजर आ रही है ये इसके ऊपर फिर एक ये हमने एक स्पेशल सा सिंबल नजर आ रहा है यहाँ पे, इट इज सिंबल फॉर अ कलेक्शन। यानी कलेक्शन का मतलब है कि कलेक्शन के अंदर मल्टीपल आइटम्स हो सकती हैं। अगेन दिस इज अ कलेक्शन, दिस इज अ कलेक्शन। तो जब हमने ये डिपिक्ट करना हो कि एक कलेक्शन के अंदर जो आइटम्स होंगे उन आइटम्स पे क्या ऑपरेशन करना है हमने, तो उस सिचुएशन में ये एक्सपेंशन रीजन बड़े हेल्पफुल रहते हैं हमें बड़े कंसाइजली अपना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि देयर इज एन ऑर्डर कलेक्शन, ऑर्डर कलेक्शन है और उसकी जो हर ऑर्डर कलेक्शन में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट जो है वो उसकी टाइप है लाइन आइटम। सो देर आर मैनी वेरियस एलिमेंट्स ऑफ लाइन टाइप ऑफ लाइन आइटम इन ऑर्डर कलेक्शन। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जी हम आगे डिपिक्ट करना चाह रहे हैं कि एक एक उस कलेक्शन में एक एक आइटम को हमने पकड़ना है और उस आइटम पे क्या प्रोसेस करना है। हम कहते हैं जी उस लाइन आइटम पे हम क्या प्रोसेस करेंगे, 2 काम करेंगे कंकरेंटली। एक तो हम वी विल गेट दी आइटम, वो हम फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स पे जो आइटम पड़ी है वो उठाई हमने, वहाँ से उसकी आइटम गेट की और साथ ही उसकी कॉस्ट को कंप्यूट किया पैरेलल में। फिर आइटम गेट करके हम क्या करेंगे हम उसको प्रोडक्ट की कलेक्शन बना देंगे, एक प्रोडक्ट कलेक्शन बना देंगे सारी आइटम जहाँ तो ये सारी इस प्रोडक्ट कलेक्शन में सारी आइटम्स
पड़ी हुई होंगी। और कंप्यूट कॉस्ट करेंगे तो इसके अंदर हम ये मनी की कलेक्शन बना देंगे। ठीक है, तो एक कलेक्शन से दो कलेक्शन सेपरेट हमने करके दो बना ली कलेक्शंस। इसके बाद हम कहते हैं कि जी ये जो है, अब इसमें सारी मनी की वो पड़ी होंगी आइटम्स। अब हम क्या करेंगे कि हम बिल बनाना है हमने, तो ये पूरा एक बिल की कलेक्शन बन जाएगी। ठीक है जी, ये मनी की आइटम्स हैं और कलेक्शन का नाम है बिल। यहाँ पे प्रोडक्ट की आइटम्स हैं, वो सारी इसमें आ जाएंगी, और पूरी कलेक्शन का नाम है शिपमेंट। तो उसके बाद शिपमेंट पे शिप ऑर्डर का प्रोसेस होगा, और बिल कलेक्शन पर सेंड बिल का प्रोसेस होगा। सो दिस इज स्पेशल नोटेशन for explaining the operation on collections. Okay, so it ends lecture 4. Any question or query? तो टाइम है हमारे पास, वी कैन डिस्कस। No, sir.